Ladies and gentlemen, we are back with another episode of Dubcast. This is Divyanshu. This is Utsav. And this is Vishwajit. We're going to talk about what Anurag Kashyap and his movies, and especially about Gangs of Wasseypur, right? Gangs of Wasseypur के बारे में हम लोग का bit थोड़ा ज़्यादा रहेगा. This is what we actually wanted to do, like for a long period of time. So we are trying to get into, our comfort zone. As you can there see, are so many things. हम लोग के पीछे सब एक कैरेक्टर कच्चा. Oh, sorry. Anurag Kashyap's career is defined by gangs. Right? मतलब you can't think of Anurag Kashyap and not think of gangs on the same time. हाँ, मतलब that's Probably there are movies which we can come up with. ना? हाँ, Like, but he rose to fame with I think gangs. ना? But हम लोग को जैसे नहीं टेबली भी था. Black Friday. Black Friday था. हाँ, Black Gangs हाँ ये भी था. Satya. Gangs Satya. basically gangs made him a household name. That's it. prominent figure. Maybe I think gangs helped Anurag Kashyap build his own cult unknowingly. Cult. With this indie gali cinema type, realistic. I think एक word जो सब मतलब हम लोग सब use करते हैं अनुराग कश्यप के लिए, that is raw, very raw. but इसका डायरेक्टिंग स्टाइल भी वैसे ही है ना कि अनुराग कश्यप लीस्ट एफर्ट देगा, कुछ लिख के नहीं लाएगा, डायरेक्शन नहीं देगा. Most of the things are improv. पूरा improv. गैंग्स का वो याद है बाइक चेस सीन जो कौन सा राजकुमार राव वाला गन जैम हो गया था ना, ऐसा कुछ था ना. गन जाम हो गया तो सही में गन जाम हो गया. चप्पल खुला, सही में चप्पल खुल गया, भाग रहा है भाई. चेयर वेयर फेंकने का कुछ था नहीं पर चेयर वेयर फेंक दिया. अरे उसका स्टार्टिंग ही सीन होता है ना, आके बोलता है ये ले कश्मीरी सेब खाएगा. अच्छा, टॉकिंग अबाउट गैंग्स का जो सेकंड पार्ट था उसमें फैजल का वो शूट आउट वाला सीन है ना क्लाइमैक्स में, जो शूट आउट करने जाता है हॉस्पिटल में. तो एक मतलब अनपॉपुलर वो है, क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट है, ओपिनियन. नहीं ओपिनियन नहीं, फैक्ट है इसका कि लाइक द होल सीक्वेंस इज सेट टू बी वन शॉट, ठीक है, बट उसमें वो सीक्वेंस में there is no high tech camera used, there is only 4 DSLRs used. वो शूट करने के लिए 4 DSLR यूज किए थे. कश्यप has done a lot of movies with iPhone. उसका iPhone से किया था ना बहुत सारे. हाँ वो अरे कौन सा एक मूवी था अरे जिसपे कल्की कोचन भी है, girl on a yellow boot, something like that girl with yellow boot. That was shot on iPhone. So Anurag Kashyap is something that like हम लोग just fans जो बोलते हैं just जानते हैं gangs के लिए, but this guy knows his shit very well. और उसका एक library है of his books and DVDs. That's like one of the best in the world, not just in our country. वो बहुत पढ़ता भी है, बहुत पढ़ता भी है. So yeah, these are one of the most like हम लोग जब मूवी देखते हैं अनुराग कश्यप का, हमें लगता है कि he is very technically able and stuff, which he is, but then he loves to experiment. पता चलता है, so मूवी देख के पता चलता है कि he loves to experiment and he is not afraid to bring in new nuances of movie. मतलब लेके आएगा मूवी अच्छा, मतलब ये like if we take an example of AK versus AK, his most recent release, ठीक है, but उसका डायरेक्टर वो नहीं डायरेक्टर नहीं है, but then he was like he was like there, like उसके बारे में था, it's like bounded by his thing. AK versus AK is also something which is very new to Indian cinema, and also the commercial base के लिए तो बहुत अलग है. meta movie is a very different thing. हाँ, meta movie और इंडियन बहुत क्राउड को भी समझ में क्या आ रहा है. तो अनिल कपूर सही में जाके स्टेज पे डांस कर रहा है. हाँ, थोड़ा बहुत I think commercialize करने के लिए they like went above the head. But like if I would rate the AK versus AK as like 6.57 out of 10. Anurag Kashyap has like been a part of greater movies than that. अच्छा, उसके कुछ movies के बारे में बात करते हैं. Basically we'll talk about this like most famous movie. First let's talk about Black Friday. Revolution, man. Revolution. Fucking Revolution. But it was released 2-3 years after, है ना?
हाँ, क्योंकि it took time to केस release. का कुछ नहीं वो जब रिलीज किया था ना उसके ऊपर वर्डिक्ट अभी आया नहीं था, सो दे कुडंट रिलीज। तो 2 साल बाद वर्डिक्ट आया, फिर 2007 में निकला, ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, ऐसा ही कुछ था। A fun fact about that, the people who produced that movie Black Friday, that's their only first production movie ever, because उसके बाद उन लोगों को जो केस मिला, मतलब the production house faced so many charges, fuck it bro, हम लोग और first and last, huh? First and last, so because they got the biggest backlash out of it. Anurag Kashyap made a scene out of it. But when it released, I remember the movie wasn't a big deal. नहीं, big deal नहीं था, even for cinema students or like people who are enthusiastic, मतलब film enthusiast, उनके लिए भी मतलब कुछ बड़ा वो scene नहीं था. But then later on, it became like a movie which is like well spoken about. हाँ, because most of the time इस type की movie, first of all, अगर हम लोग Indian cinema भी देखें ना, तो from early 2000 और mid 2000 में the change was coming up, like कि ऐसा चीजें दिखाऊं तो they which are more realistic. ऐसा नहीं था कि Indian cinema में realism नहीं था, but the actual how it happens or the truth of cinema और जैसे real life में होता है वो बहुत आस्ते आस्ते है. So at that point audience weren't used to it. मैं भी नहीं था यार, मुझे अगर तू 2004 या 5 में जाके, तब मैं धमाल देखता था और तब तू मुझे ब्लैक फ्राइडे दिखाएगा तो मैं क्या ही क्या है, ये टैटी मूवी है. So from there almost gradually changed. Also, I became a अच्छा, when did you become a fan of Anurag? ये सबसे बड़ा Anurag Kashyap. Yes. That's because our generation. So that's the are you saddest asking? part. Are you asking the reason or are you asking the point when you became The movie. Point. Where Where you became the fan? Gangs. Yes. Because Gangs I saw, like, I can confess this, that I saw Anurag Kashyap's like most of the movies I saw later. Like after watching Gangs, then I saw Satya. Even Satya I saw later on. सबसे पहले Gangs. Gangs. But I saw Devdi उससे पहले देखा था, No Smoking भी देखा था, but मुझे पता नहीं था कि that was directed by. Yeah. No Smoking was not a commercial hit. मतलब I think most of the movies are not commercially hit. Anurag Kashyap has been a part of a lot of great things also. Like ऐसा नहीं कि he's just a good director और लिखता अच्छा था. वो बहुत सारे ऐसे projects उसने काम किया है ना. Not only movies, like movements. They're like considered as movements in the industry. Thanks to him, we have got gems like must actors हम लोगों को मिले. Vicky Kaushal is one of it. Manoj Vajpayee was prior to him also. No, but I think this movie is like Manoj Vajpayee's breakout movie. This character, Bhiku Matre, is the character where Manoj Vajpayee got the, like, not totally, but not totally, but वो एक opening मिला. But also if you look at how Kashyap का actor selection must है. All of them come from drama schools or theater, है ना. कोई भी ऐसे टट्टी से नहीं आया. Clearly merit पे लेता है वो. हाँ, मतलब clearly merit पे लेता है. And also they have a वो देसी accent वाला vibe. मनोज वाजपेयी, ये अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो देसी accent. Even Vicky Kaushal has that like had that persona innocent of face. Yeah. हाँ, मतलब और वो उसी that is the reason कि तू connect कर सकता है कि तू देख रहा है कि अच्छा ऐसा इंसान को मैं पहचानता है कि हाँ ऐसा इंसान है, not exactly like है, हाँ तो हाँ रहता होता ही होगा ऐसा ही. So we can consider Anurag Kashyap's movie as very like relatable types. मतलब हो सकता है ऐसा कैरेक्टर, हो सकता है कैरेक्टर्स देख के पता चलता है कि हाँ हो ही सकता है. हो ही सकता है. उसका अगली मूवी कोई देखा है यहाँ पे? हाँ of course. अगली one of the most underrated movies I can see. बहुत सही मूवी था यार, बहुत सही मूवी. And what a climax. बस अब नहीं देख के आया मैं, स्पॉइल करेगा और तू देखा नहीं है. अच्छा तो अगली में ऐसा होता है और लास्ट में ना ऐसा हो जाता है. बट उसमें ना I was a fan, but like even after that movie I was like praising for Ronit Roy. Ronit Roy is an actor. I think he's like, he deserves more than
एनीथिंग एल्स, मतलब उसको कुछ मिलता नहीं है, प्रेज प्रेज कुछ अवार्ड कुछ नहीं, बट उड़ान, फिर अगली, रोनित रॉय क्या है यार, कि एक ये सब मूवी में बाप है जो दारू पी के सबको पेलता है, ठीक है, we have still seen it, we know them, not personally though, but we know not our dads. हाँ, but we know कि सोसाइटी में ऐसे बाप है जो दारू पी के बेटा को पेलता है, so that's how it is, like character choose और जो acting करवाता है, it's बहुत relatable है, मतलब you see, you know, people are there in this world who are actually like this, so that's the greatness about him. I'm not dissing any other like what characters also in our country. I think like just a bit off topic, मतलब अनुराग कश्यप का सबसे क्या बोले ऑफ द बुक चॉइस मेरे को मन मर्जिया लगा. But it's very good. It was very Experiment. I love that movie, मुझे- but then मुझे भी अच्छा लगा. बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स फॉर अनुराग कश्यप ऑल्सो, मतलब एक लव स्टोरी, एक वो क्या बोलते हैं, रॉनेस भी है, बट इट्स वेरी स्वीट एंड ऑल. current generation love story हाँ. kind of, yeah. So, or fun fact about that, not fun fact, you see, people also abuse Abhishek Bachchan for for a lot of reasons, but if he gets a good director na, that guy does great acting, And even the Man character Marzi- was perfect for him. very perfect. और अनुराग कश्यप का उस मूवी मन मर्जिया में I think best acting wise role or acting was done by Abhishek Bachchan. बहुत अच्छा से Agreed, utilize किया agreed, गया था उसको. agreed. उसको बहुत सही से यूज किया गया था. The moment when he get fed up about his wife, she's cheating and he just fucking, I'm disappointed at just, I'm fucked up at that moment. That's where it's obviously we, हाँ, ये भी हम लोग जा चुके हैं अपने लाइफ में. But I think कश्यप का क्या लगता है worst, मतलब worst movie in the sense customer wise, मतलब as an audience क्या था? वही हो सकता है. क्या अरे बॉम्बे है वेलवेट? ये, हाँ बॉम्बे वेलवेट तो है ना. बॉम्बे वेलवेट बहुत हागा भाई बॉम्बे वेलवेट. touched it, बहुत हागा. kind of, but talk about Raman Raghav 2.0. ओह मस्त मूवी था, मेरे को तो मजा आया. क्या मूवी था. मस्त मस्त. मतलब मैं मूवी जब स्टार्ट किया मेरे को लगा वैसे ही कुछ होगा, ऐसा स्टोनमैन मर्डर्स जैसा दिखाएगा, ऐसा हाँ, एक सीरियल हाँ. किलर है, लास्ट में पकड़ लेगा धप से, बट मतलब कुछ अलग ही देखा मैं मूवी में, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है पूरा. सीन, कोई अच्छा है ही नहीं मूवी में. कोई अच्छा नहीं, सब चूतिया, सब हाँ. चूतिया. हाँ, मतलब और कश्यप मूवी में कोई हीरो रहता भी नहीं है ना. देयर इज ओनली मतलब एंटी हीरो एंड ensemble. विलेन. ऑनसॉम वो रहता है. चलता है तेरा उसमें. हाँ, ensemble सब चलता कोई है. ऐसा हीरो विलेन वो कॉन्सेप्ट नहीं है. और Nice. और एक तो सबसे अच्छा चीज है ना, इफ यू वॉच कश्यप मूवी ना, उसके मूवी में अगर इफ एनी इंडिविजुअल इज गेटिंग अ सीन और अ बिट, लाइक अगर 5 मिनट का भी, इवन इट्स फॉर 10 सेकंड और 1 मिनट, दैट कैरेक्टर स्टेज इन योर माइंड. मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट है, जैसे बहुत सारे मूवीज में होता है ना कि वो एक छोटा सा पार्ट है, इवन इफ द एक्टर इज गुड, जस्ट पीपल फॉरगेट इट बिकॉज़ नहीं. अरे गैंग्स में वो गाना गाया था, कितना मिनट होगा? 3 मिनट. आइकॉनिक आइकॉनिक बन गया, आइकॉन बन गया. That's what it is saying कि वो छोटे-छोटे पार्ट्स को भी इतना सुंदर से मतलब मस्त. utilizes his screen time. Na? That's how like you should credit a director rather than anything else. But Raman Raghav, let's talk about Raman Raghav too. Raman Raghav, I think Nawazuddin was मस्त एक्टिंग किया. Nawazuddin, Must then Vicky Kaushal in the movie as even characters. I would rate Vicky Kaushal up there because that was something. Nawaz ke liye, I'm not saying Nawaz wasn't there. Nawaz was there, but Vicky Kaushal doing something like that is appraisable. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया. That was नवाज से was expected and he delivered. But विकी का था कि like यही बात होता है ना कि like हाँ एक्सपेक्ट करते हैं तो इसको, हाँ वही एक्सपेक्ट करते हैं तो ठीक है, कर दिया तो कोई बड़ा बात नहीं है. No, not taking any fucking credit. वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया था for that role. मतलब वो कूड़ा कड़का में घूमता फिरता था, खुद साइकोपैथ हो गया था, पगला गया था. I still remember that scene. उसमें नहीं होता है, वो अपने घर में जाता है तो अपने जीजा जी को मारता नहीं है, बच्चे को मारता है और बहन को भी. बहन थी कि वाइफ थी? वो बहन थी ना, दीदी ना बहन है. Oh my God. मतलब
ऐसा हेलमेट पहन के हाथ में सरिया लेके ऐसे दौड़ के कोई आएगा ना, दरवाजा खोलते मतलब लगेगा कि ये क्या देख रही है। और मुझे सबसे और उसमें इट वाज वेरी नर्वी और थोड़ा क्रीपी लगा था, वो एक टिन के ऊपर ऐसे करके बैठा हुआ था रॉड हाँ, लेके हाँ, रात हाँ। को, वो दैट वाज फकिंग, दैट वाज एक दैट ऐसे करके बैठा दैट हुआ। वाज हिज पोज ना, रमन राघव का। हाँ हाँ, मारेगा अभी मारेगा। और रामन राघव में है ना, वो उसको दरवाजे के अंदर ना एक जगह पे बंद कर देता है, बोला ए खोल दो अब। देन बहुत जोर चिल्लाते, खोल दो खोल दो खोल दो, फिर देखता है कोई है, अरे फिर एक किसी को देख के बोलते सिगरेट दे दो। You remember those things because that's और most probably वो भी कोई एक improv होगा, मतलब बोल देगा कश्यप कुछ कर। also so I just wanted to say कि मतलब ये सब एक्टर्स, नवाजुद्दीन, फिर मनोज बाजपेयी, फिर इवन विकी कौशल, पंकज थोड़ा बहुत पंकज त्रिपाठी, ठीक है, पंकज ये सब त्रिपाठी। एक्टर्स व्हाट डू यू थिंक लाइक दे आर, मतलब वो लोग अगर अनुराग कश्यप का 2-3 और मूवी करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा टाइप कास्टेड हो जाएंगे, बिकॉज नवाजुद्दीन तो टाइप कास्टेड है, चाहे Already वो हो कैसा गया। भी रोल्स करे, वो टाइप कास्टेड है कि उसको वैसा ही एक एकदम छपरी टाइप का रोल ही मिलेगा, ठीक है, मतलब मिलेगा, यू काला कांट डील रे। विद, हाँ हाँ सही काला रे। हाँ, तो परमिशन लेना चाहते हैं तुमसे। वो सब रोल मिलेगा ना। पंकज त्रिपाठी इज लाइक ग्रोइंग, उसको थोड़ा सा मतलब नहीं, प्रॉपर रोल और एक मिला चीज है। हाँ, Pankaj Tripathi was smart enough not to get typecast. Still he is मतलब typecast है कि उसको उसी टाइप का एक रोल मिलता है, वो मिलता है, but he was smart enough to do other kind of works. बट वो है ऑल्सो कि मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट पंकज हैज अ हीरो-ish face which हाँ Navajuddin doesn't, है हाँ ना? हाँ हाँ, वो तो इट्स है, लाइक मतलब पंकज को देख के वी तो बोले वांट, कि अच्छा आदमी है। कि अच्छा हो हाँ सकता है ये, मतलब नहीं है लेकिन अच्छा हो सकता है। नवाजुद्दीन को धक्का भी लेके नहीं रहेगा, ये अच्छा नहीं है, ये है मेरा सारा जूता ही उठाएगा ये। सो यू कुछ ऐसा। मतलब हम लोग अगर चाहे ना तो पंकज त्रिपाठी को किसी भी रोल में डाल सकते हैं। पंकज त्रिपाठी को तुम हर रोल में ले सकते हैं, ये बात तो सही है। हाँ, तो पंकज त्रिपाठी काफी उसका ऐसा तो वर्सेटाइल अली फेस है। ये अपना यहाँ पे जो 3 वो है ना कैरेक्टर्स, हम्म, ये तीनों में डाल सकता नहीं है, दो, दो में तो डाल ही सकता है, ये दोनों में डाल सकता है, ठीक है। फैजल में थोड़ा सा वो चाहिए कि हाँ थोड़ा सा यंग थोड़ा जोशीला वाला सीन चाहिए, बट वो भी क्या है कि पंकज त्रिपाठी आ जाएगा ऐसा बाल में डाई वाई लगा के। पंकज त्रिपाठी जो गुंजन सक्सेना में वाला किया मैं था, हाँ 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 उसमें तो हाँ, नवाजुद्दीन को डाल सकता है। ना तो ना भाई डाल ही नहीं सकता, ना। नहीं डाल ऐसा सकता, पता उसका बाप चला बन सकता है वो। लड़की रो रही है, वो तो मारेगा चमाटर धत धत तेरे के, मतलब बोले थे प्लेन चला लो ठीक से। बोला गियर लगाना था, गियर इधर होता है इधर नहीं। बोले पापा प्लेन है कट्टा नहीं। अरे उड़ जाएगा। बट ठीक है, बट कमिंग बैक टू अनुराग कश्यप, Yeah. किसी ने डेब्यू देखा है यहाँ पे? हाँ हाँ देखा। हाँ, there. आई Very थिंक good take वन on ऑफ द Devdas. बेस्ट, हाँ एग्जैक्टली, आई नॉट द वेरी गुड, आई थिंक द बेस्ट वर्जन ऑफ देवदास। हाँ हाँ, नहीं बेस्ट वर्जन कैसे, बेस्ट नहीं, बेस्ट कैसे तो होगा क्या नहीं। बोल देवदास रहा है? का? बेस्ट Best ट्रांजिशन ना। ऑफ देवदास। बेस्ट विल बी दैट कि जिसमें चेंजेस नहीं है, इसमें तो चेंजेस को लेके ही खेला है ना, दिस इज लाइक एन एक्सपेरिमेंटल मूवी, बस बट कॉन्सेप्ट वहां से प्लस, उठा है। हाँ वही। स्टिल आई वुड से कि अगर एक बेवड़ा आशिक होगा और जो नशा करता मॉडर्न है एकदम, मॉडर्न डे टेक के लिए बहुत अच्छा है, हाँ, मॉडर्न डे मतलब एकदम एडेप्टेशन ऑफ अ एकदम एकदम। लाइक अ क्लासिक, ऐसा शेक्सपियर को अगर हम लोग मॉडर्न डे टेक करेंगे तो शेक्सपियर का तो किया है, गुलाल तो किया। गैंग्स का स्टार्ट कहां से था? महरूम को बच्चा अटक गया तो वहां से। गैंग्स का आई थिंक द फर्स्ट आइकॉनिक सीन क्या होगा? गैंग्स का फर्स्ट आइकॉनिक सीन, अच्छा अरे मतलब वही तो इधर- गैंग से स्टार्ट ही तो होता है सेकंड पार्ट का, वहां से गोली मार। ओ अच्छा, हाँ हाँ, बोले सरदार खान गया भिट्रामपुर। बट ये गैंग्स में मतलब अभी जिन लोग मतलब बड़ा काम कर रहा है वो लोग सब है उसमें, मतलब स्टार हाँ, वाइज सब है। गैंग्स में तो जो, अरे बुझे का भी एक मूवी किया वो मुक्काबाज। हाँ वही तो बूझे कि नहीं, हाँ बुझे। विनीत सिंह, हाँ विनीत हाँ, कुमार ऐसा कुछ नाम है ना, सब मुक्काबाज वो भी तो है, टाइगर का कुछ था ना? अनुराग का है। तो टाइगर का कुछ था ना जो अपने गैंग्स में था, कुछ उसका फन फैक्ट है ना, मैं भूल रहा हूँ कौन उसका टाइगर? कुछ। अरे अपना गैंग्स वाला टाइगर,
गैंग्स वाला टाइगर कौन? अरे दुर्गा का बेटा। अरे अरे दुर्गा का टाइगर। बेटा। अरे ये सेक्सी लग रहा था। दुर्गा का बेटा तो वही, उससे याद आया मेरे। सेक्सी लग, डेफिनेट। अरे जो डेफिनेट, सॉरी सर, टाइगर हाँ का वैसे बात- बोलना डेफिनेट। अरे मैं क्या बोल रहा मैं? टाइगर टाइगर क्यों टाइगर टाइगर डेफिनेट आई गेस इज द राइटर ऑफ द मूवी। डेफिनेट हाँ राइटर ऑफ द डेफिनेट मूवी ना। राइटर ऑफ Sort of द उसका वन ऑफ द input राइटर्स था। ऑफ द मूवी। वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द जिशान का बोला। अरे आके बोलता है लाइक पैसा कमाएगा, बोले क्या करना है? बोलता है यहाँ से वहां तक जाना है। और उस- गैंग्स में एक चीज है ना, मतलब हर एक सीन के लिए एक एक मीम बना हुआ है, मतलब और तू लिटरली गैंग एक एक सीन। और तू हर जगह गैंग पेल सकता है। हाँ हर जगह, लाइक हर इवन जगह तू मतलब कुछ है उस मूवी में उसका एक बट दैट्स अलग अ गुड ही। पॉइंट हाँ कि गैंग्स अच्छा मूवी तो था ही, बट इट वाज आल्सो इतना फेमस बिकॉज ऑफ द मीम क्वालिटी। उसका हर जगह मीम है ना, क्योंकि लंदन आज। मैं वही पूछने वाला फिर था, हेरा बिकॉज फेरी, व्हाट हर इफ जगह मीम है। व्हाट इफ मतलब गैंग्स ये इंटरनेट का दौर में नहीं रहता तो, बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है, हम लोग का एज का ही बता रहे हैं कि हम लोग ना डाउनलोड करके देखे, हॉल में जाके कोई नहीं देखा मूवी। कोई नहीं देखा क्या? ब्रो। गैंग 2012 गैंग्स 13 में भी नहीं देखा। उस समय तो टॉरेंट अपने एकदम चरम सीमा पर था भाई। उस समय तो कोई नहीं देखता था। तो वही हमें बात तो हो गया ना, काम कर रहा बिकॉज है, पॉपअप आ टॉरेंट जा रहा है किंग टॉरेंट। अपना बॉलीवुड का टॉरेंट किंग वही है, अनुराग कश्यप है। हाँ, अधिकतर उसका मूवी हम लोग टॉरेंट से निकाल के देखे। हॉल में तो आई सही डोंट है थिंक bro। मैं कोई मूवी देखा है उसका। मैं तो लास्ट क्या मूवी याद मनमर्जी है मैंने हॉल का एज अनुराग कश्यप फैन मैं उसका एक ही मूवी हॉल में देखा जो उतना भी सही नहीं, ठीक लगा, बट मनमर्जिया जाके देखा बिकॉज हाँ मनमर्जिया मैं भी देखा, मनमर्जिया में लास्ट देखा मनमर्जिया। और मैं अनुराग कश्यप का कोई भी मूवी हॉल में नहीं देखा। मैं सब या तो डाउनलोड है। नहीं वैसे कैसे देखेंगे, तो कॉल्ड बिकॉज है। अपना सेंसर बोर्ड है, इतना कुछ है, हर कुछ तो काट के अच्छा उस देगा। समय जा नहीं सकते थे ना 2012 में अपन 18 पे अपना नेविल तुम शाह लोग जा सकता था। नेविल शाह मैं जा जाता सकता, ये जाता। मैं जा सकता था। ठीक है ठीक। तुम लोग अपना इतना पॉडकास्ट मत कि मैं तुम लोग से 40 साल बड़ा है। अपना पॉडकास्ट का नेविल शाह। हाँ तो मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था बस मुझे, मैं गैंग्स 2 साल बाद देखा। मुझे कोई इफ अनुराग थप्पड़ कश्यप मार इज के वाचिंग देन सी यही है। यही जा ये है सकता मेरे था, पे। नहीं गया, नहीं गया, ये जा सकता था, हम लोग नहीं जा सकते थे। हम लोग जा ही नहीं सकते थे, हम लोग कैसे हाँ, जाते। कट्टा मत बट निकालना मुझे प्लीज। मुझे किसी ने 1.5-2 साल बाद बोला कि तुमने गैंग्स नहीं देखा। बोला नहीं देखा। बोला देख बैठ के दिखा। अभी देख। अभी देख, मैं मर गया देख के बाद। मेरा तो यार हॉस्टल वाला सीन था, पीयर हाँ प्रेशर। मैंने देखा था। गैंग्स देखना, गैंग्स देखना, देखना देखना। गैंग्स देखा क्या है क्या गैंग्स? है, क्या है, क्या है ये? और कोई पूरा नाम नहीं बोलता था, कोई पूरा नाम आज तक गैंग बोला ही नहीं। गैंग्स गैंग्स ऑफ गैंग्स वसीपुर तो मैं सुना ही नहीं। गैंग्स गैंग्स और वसीपुर का भी मैं अलग से वो देखा, पता है, वसीपुर का भी एक वैसा इमेज बन गया था गैंग्स ऑफ वसीपुर के बाद। अरे मेरा एक दोस्त था, हाँ ठीक है, कॉलेज में वसीपुर से। पर्सनल स्टोरी। तो मैं उसको, हाँ पर्सनल स्टोरी, तो मैं उसको पूछा कि कैसे सही में होता है। हाँ। बोला भाई ऐसा 1000 फैजल खान को मैं जानता हूँ जो मेरे कॉलोनी में रहता है भाई। ट्रू 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 वेरी ट्रू। मुझे कट्टा लेके आ गया। पूरा भाई सब होता अरे है। फैजल खान से हर एक चीज याद है। अरे जब उसको एक को टकला करके मार देता है ना, उस साकाल लग रहा है, हाँ बोलता है ना। हाँ, हाँ उसके पहले जो उसको जो लीक आउट देगा, उसको बोला हाँ। देख यहाँ पर पेट में बंदूक रख के बोलता है, गांड में बंदूक रख के बोलता है, देख ईमानदारी से रहेगा तो गोली खाएगा, अगर बोल दिया तो पूरा बकरा मिलेगा। जैसे ही मारते बकरा दे देता भाई। वो आइकॉन, उसका कुछ सीन तो आइकॉनिक है। और एक जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन है, बहुत अंडररेटेड है, जब वो मछली का तालाब ले लेता है, उसका बड़ा बेटा दानिश जाके को कोई नो फक्स गिवन। अब से ना ये हमारा तालाब। अरे नहीं नहीं, वो भी है, वो जेलर को या क्या, जेल में नहीं घुसता, उसको बोलता है क्या अरे किए, बोलते हैं हाँ। क्या अरे किए? अरे कूट दिए। उसका बाप के सामने, वो भी एसपी ऑफिस का किए, कूट दिए। अरे वही उस मछली वाला बोलता है ना जाके कि आज से एक सबको मछली हमारा, एक को मछली उठा लिया, यहीं पे बोरा बोरा के काट के फेंक दिया। बहुत क्या गुंडागिरी है भाई ये।
सही है। सही भाई भाई भाई। और एक तो बात बोलना है गैंग्स का, कांप कह रही हो? हाँ मैं अभी बोलने वाला था नहीं, उसी को। कोई अभी तक छुआ क्या नहीं नहीं हुआ है का? का? हमको पहचानती हो? इतना बड़ा हो गई हो। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं ना कि सब अपने अपने गैंग्स इतना बड़ा है कि ये पूरा एपिसोड ही गैंग्स हो जाएगा रादर देन कश्यप। सो एक एक करते कि सब अपने अपने दो दो करके फेवरेट सीन बताओ। देयर आर लॉट्स बट वी विल टॉक अबाउट 2 फेवरेट सीन्स जो आउट ऑफ द ब्लू में आ रहा है। शुरू करो भाई। दिव्यांशु स्टार्ट करो। करो। एक तो है कि जब नवाजुद्दीन इसको लेके जाते हैं हेमा कुरैशी को अरे अरे यही बोलने दिलाने, वाला कपड़ा था। दिलाने। फिर बोलते फिर वो पूछती है कि बुढ़ा हो जा रहे हो तुम, बोलते नहीं हैं नहीं, ना। पहले तो वो शक्ल बोलती है कि शक्ल मेरे देखा? साथ पिक्चर देखने चलोगे? कहती है कौन सा पिक्चर? कहते कोई भी पिक्चर का नाम बोलते, कहते देख लिए। कहते हाँ हाँ, करण देख लास्ट पे लिए, करण कहते अर्जुन। देख लिए। फिर नहीं, फिर लास्ट में बोलता है कि नहीं तुम हमको फिर छुओगे, हमको हमेशा छेड़खानी करोगे। कहते हैं माँ कसम नहीं करूंगा। माँ कसम। माँ कसम नहीं करूंगा। बोलते अपनी अम्मा के साथ ही चले जाओ ना, इतना प्यार है। पॉपकॉर्न गोदी में गिरेगा तो नहीं उठाओगे? माँ कसम माँ नहीं कसम करोगे? नहीं उठाऊंगा। कस के नहीं बैठोगे? माँ फिर कसम नहीं उसी करते। सीन में कंटिन्यू में लोग सामने जाते हैं। फिर पूछते हैं कि भैया जरा इसका एज बताना कि कितने उम्र के होंगे। हाँ कहता है 45। कहता है भोसड़ी क्या बोला? क्या ऐसे कट्टा निकलता है। तेरे कितना बोला? कहता है अच्छा 40 40 40 30 30। भोसड़ी भोसड़ी के के आज ही पैदा हुए हैं। हैप्पी बर्थडे। कहते हैप्पी बर्थडे। ओ भाई खत्म, मैं खत्म। इतना नेचुरल है ये। और इतना नेचुरल है ना, देख के सुन के नहीं लगता है, देख के भी लगता है कि ये कैसे हो ऐसे सकता है? उसको कोई बोला लिख कि कैसे करने के लिए वो सकता है? कर दिया। कैसे लिख सकता है ये कोई? और और दूसरा और, था और हैप्पी बर्थडे। मस्त। चल। और दूसरा था कि जब उसको गोली लग जाता है, उसके बेटा को, दानिश अरे को। यार तू मेरा दोनों सीन उठा लिया है। अरे, भाई उससे वो उससे पहले चाबी का। अच्छा, चाबी का अच्छा नहीं, चाबी तो उसी तो बाद में वही तो होता है ना। कंटिन्यूएशन है ना, वही हाँ सीन का। वही है। हाँ। गोली लग गया। गोली डॉक्टर लग गया। साहब, गोली लग गोली गया। अब कैसे होगा सब? फिर बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ बाबू। पिताजी हम ठीक ठीक कैसा ठीक? बाबूजी हम ठीक है, पिताजी क्या बोलते हैं? पिताजी बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, क्या बोलता बाबूजी था? बाबू। अब्बू अब्बू अब्बू। अब्बू हम ठीक हाँ है। अब्बू हम अब्बू हम ठीक ठीक है है। अब्बू। अरे असगर चाचा हम ठीक है। ठीक है। फिर उसको ठीक बैठाता है। कैसे? चाबी चाबी कहाँ गया? गान घुस। फिर डॉक्टर के पास जाता है ना। डॉक्टर के पास जाता है। बोलता है मेरा बेटा को 2 गोली लगा है। अरे लिटाओ इसको, लिटाओ। बोले खुद क्यों बोले, लेटेगा, आपका मर बेटा जाएगा कहाँ तो। है? खुद लेटेगा तो मर जाएगा। मर गया तो? बोले फिर लाइट चला जाता है। बोले कहते फिर अरे बिना लाइट के कैसे करेंगे? नहीं कहते गोली मार देंगे। गाड़ के अंदर, बोले गाड़ के अंदर। नहीं, फिर उसको बोलता है कि मेरे पिछवाड़े कोई ट्यूबलाइट तो नहीं मेरे लगा। पिछवाड़े पे कोई ट्यूबलाइट। बोले गाड़ के अंदर सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, गोली मार देगा माता अच्छे। बिल्कुल था, मेरा बेटा को 2 गोली लगा है। बोले कहाँ है आपका? बोला ये तो खड़ा है। बोला ये तो खड़ा है। फिर बंदूक लेके चल। सब बोलो, सब बोलो। भाई कैसे हो सकता है भाई? मेरा उससे मेरा बोलो, मेरा ऐसा सीन तो बहुत सारा है, पर इसलिए तो बोलो मोमेंट मेरा वो है, मोमेंट चप्पल वाला मोमेंट है। ठीक है, कौन सा? ऐसा भागते भागते हम वो फर्स्ट, पेट्रोल हम पंप पे बोले चप्पल चप्पल चप्पल। मतलब कौन हम करते फर्स्ट। कौन सा, मतलब भागते हुए बोले चप्पल चप्पल चप्पल। ठीक है, वो वाला सीन तो है, मतलब मेरा अरे चप्पल से और एक चप्पल का सीन है। जब फैजल खान, उसका बाप कौन है? बाप कौन? सरदार मर जाता है। सरदार खान। हाँ जब फैजल गांजा पी के धूत है, हाँ। पैदल चला जाता है, फिर वो भी चप्पल पहन के मारेगा। याद क्या? है। हाँ वो। और क्या ऑल्सो हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, वो लास्ट वाला सीक्वेंस मतलब वो नवाजुद्दीन से फूक के हाथ में 2 मशीन गन लेके अच्छा। ऐसे ही घुस जाता है।
मतलब काफी हाँ, मतलब उसके उसका क्या स्टेचर है Swag. उसको देख के कोई पता चलेगा काफी कि भाई swag. ऐसा हाथ में बम बम लेके निकल गया बंदा। तो वो दोनों मेरा है मेरा मेरा वन ऑफ द मेरा फेवरेट्स। हाँ मेरा मेरा फर्स्ट है। वेट. बोले हाँ. फिर आता है बोले यहाँ है क्या गंजा, गंजा है इधर। बोले ये पूरी हमको ये नगमा है, बोले हमारा फायदा उठाइए ये। चाकू लेके आती, चाकू लेके आती है, बोलती बोले मर्डर हो जाएगा, बिन बच्चे की बिन बाप की माँ हो जाओ। 144 क्या? कौन सा 144 सेक्शन लग? मर्डर हो जाएगा। फिर बीवी उसको एक ब्रोकल से खोज के बोलती है, हाँ. कभी ना कभी तो घर आएगा साला बड़ा साला रडवा. बड़वा साला रंडी बाल। हाँ. बाप रे वैसे बाप. और एक सीन्स में होता भी है ना ऐसा है ना कि हम लोग को कुछ कुछ ऐसा सीन नहीं बट कुछ कुछ है कि डायलॉग्स मतलब वन लाइनर्स ना हाँ. बहुत हाँ, बहुत उससे सारा है बहुत बहुत ज्यादा. सारा। बहुत उसमें ज्यादा. और एक है वो जब जेपी और जब उसका गुंडा बन जाता है सरदार जेपी का, जब लेके आता है, जेपी. जब आता है अरे अपना ही तो बगल में रहता है जेपी. जेपी जेपी, अरे वो आता है फिर उसमें जाता है, बोले कागज दिखाए, बोले देखिए साहब 10 टका में खरीदे, बोले वैद अवैध का हमको मत सिखाइएगा, हम पूरा 10 टका में, वैद अवैध का हमको सिखाएगा, वो ताड़ ताड़ बढ़ता है, बोले बोले, आपको नहीं पता हमको नहीं, जब घर में जाके पिताजी का गण कुछ बोले तब पूछेगा हम कौन है, सुनिए एसपी से, क्या बोलता है जेपी साहब, जेपी साहब. आड़ चाहे जितना भी बड़ा रहता लाड़ लाड़ गाड़ के नीचे। मस्त मस्त वो डायलॉग था। और भाई, ये भाई। अपना इसके बारे में तो बोला ही नहीं ना मतलब कौन क्या सा? नाम है तिग्मांशु धूलिया। ओह. हो अब तो सच बोल नामधीर दे सिंह। भोसड़ी के, अब तो अब सच तो बोल सच दे। बोल दे। नहीं, नहीं, मतलब वो उस मूवी में मैं देखा है क्या मतलब खतरनाक एक्टिंग मतलब ही इज नोन फॉर हिज डायरेक्शन एंड ऑल बट स्टिल क्या एक्टर है। अरे वहां पर एक सीन है, छोटा सा सीन है, जब वो वर्कर्स लोग को खाना खिलाता है, वो एक किसको मारने जाएगा, बोले वहां पर वो गार्डन गार्डन खेल रहे हैं, हमरे यहाँ पर आदमियों के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, वहां पर गार्डन गार्डन खेल रहे हैं। फिर उसका बाप को मार दिया, फिर बच्चा को, बहुत बड़े आदमी ने तुम्हारे पिताजी टीका लगा। ओह. ओ भाई, बाप रे गैंग्स बाप. गैंग्स बहुत सीरियस मूवी, बट बहुत हंसी आएगा तेरे को देख के। नहीं ईच एंड एवरी सीन ना हम लोग जो बोले काफी सीरियस है बहुत बहुत हाँ. ज्यादा गुस्सा में है। सीरियस है बट वो डायलॉग डिलीवरी और जो अप्रोच था ना पूरा मूवी में ओहो मतलब अलग ही अप्रोच है ह्यूमरस है मूवी Humorous or improv or spot on, like they directed you which buttons to hit also, तो तेरे को फनी लगेगा ही, खुद के ही मारा सही में किया, बट बहुत सारा था। अच्छा चलो बहुत गैंग्स का हो गया, हम लोग गैंग्स का बात करेंगे तो हम लोग का खत्म नहीं होगा. कॉन्वर्सेशन हम लोग का खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा है। Yeah, we can लेट्स go टॉक on and अबाउट on. अनुराग कश्यप ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। सो फर्स्ट क्या है? Sacred Sacred. Games. Sacred Games. है ना. सेक्रेट गेम्स। सेक्रेड गेम्स जब आया उसका मैं ऐसे ही देखा था कि क्या है ये, क्या टटके सेक्रेड गेम. पहला एपिसोड पहला डायलॉग, भगवान से डर लगता है, नहीं भगवान को मानते हो, फिर कूदता है, ऐसे नीचे गिरता है, मर जाता है, बोलता है भगवान को लंड फर्क नहीं पड़ता. मैं बोला भाई ये तो देखना है भाई. यही तो था इसी के लिए तो वेट कर रहे थे। अरे उसका कौन एक दोस्त था ना, दोस्त को बोलते ऐसा दोस्ती हुआ जैसे दो गांड एक साथ रखते हो। हाँ उसमें दो एक dialogue- अरे क्या था अरे वो जो अरे गोल्ड का बिजनेस करता था, टकला था, हाँ हाँ मैं समझ गया, उसका नाम उसी नहीं को है. बोले नाम याद अरे नहीं। कैरेक्टर्स का नाम भूल गया मैं उसमें क्योंकि सेक्रेड गेम्स थोड़ा बहुत पहले सेक्रेड का गेम्स था. में बहुत सरताज also- था और हाँ वो बंटी कौन था? बंटी अपना अरे बंटी भी तो था छाता कहाँ, छाता। छतरी डाउन। That was a meme for a long time, right? बहुत बंटी। अरे क्या है, तेरे को येड़ा लगता ना कि चूतिया लोग कैसे कुछ था नहीं? सेक्रेड गेम्स का बहुत बहुत अच्छा था पर सेक्रेड गेम्स ना बाद में जाके लाइक सेकंड सीजन वाज अ वेरी मेजर लेट डाउन। अब बहुत करता है, बहुत ज्यादा ही, कौन किसको चोद रहा है, पंकज त्रिपाठी सब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब और sad. but I was very happy about Saif Ali Khan doing that series because सरताज। हाँ सरताज का रोल मेरे को बहुत अच्छा लगा था even in second season मेरे को काफी अच्छा his वो character. It suited his character. Also अपना विक्रमादित्य मोटवाने
मस्त भाई, क्या काम किया उसने, मस्त। ऑल्सो वरुण ग्रोवर, अपना अपना वरुण 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 ग्रोवर। मसान मसान अपना, अरे अपना हम्म, वरुण। अरे अपना वरुण। वरुण ग्रोवर उसका पूरा सीरीज का राइटअप फर्स्ट सीजन का मोस्टली राइटअप वही लिखा है। फर्स्ट सेकंड सीन दोनों लिखा है, दोनों ही लिखा, सेकंड दोनों सीजन लिखा हेल्प किया है। है। दोनों लिखा है, दोनों। ये ट्रायो बहुत मतलब आई थिंक probably still very underrated. विक्रमादित्य कौन सा? मोटवा ने हाँ, वरुण ग्रोवर और अनुराग कश्यप, but I don't think they'll be coming off returning back again with something इतना like इतना this, जल्दी तो but नहीं होगा। टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा इसको लेके। और ऑल्सो वर्थ द वेट। सीक्रेट गेम्स का एंडिंग तो कुछ खास नहीं था, तो वापस कुछ बिल्डअप But करने के लिए also, बहुत I टाइम think लगेगा। we saw Cobra Seth for the first time, na? In Oh, Secret हाँ, Games. Oh Cobra yes, Set, हाँ। है ना? Cobra Set, कुबरा सेट एंड कुकू, दैट कुकू। बंटी, बंटी का नाम क्या था, मैं भूल गया उसका नाम, बट बंटी तो अरे यार, ओह बंटी तो कैरेक्टर का नाम। बंटी तो कैरेक्टर का नाम। जतिन शर्मा, जतिन शर्मा। जतिन शर्मा, जतिन शर्मा, हाँ जतिन शर्मा। जतिन बंटी तो ये सरना, रहा है। सरना, सरना। सरना, अच्छा, ऐसे सर। ऐसे मैं ऐसे तो आर एन। जतिन देखा पता है? नहीं। जतिन 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 शर्मा अरे मेरे को अपना याद जतिन, है। अपना जतिन। अरे हाँ हाँ। अब बंटी तो ये रहा है। हाँ, बंटी तो ये, बंटी तो चुतिया है। बंटी तो चीते है। अरे क्या सब गाली दे देता है, ए क्या भाव, क्या हिले रहा है क्या। हम्म, वो प्रॉपर एक मुंबईया एक एक आदमी का हम्म, रोल किया था। मस्त मस्त मस्त। और एक बार वो सेकंड सीजन में पता है जब नवाज उसको फोन करके बोलता है मैं अभी चांद में, बोले भाव चांद पहुंच गया। वो ब्लाइंड ब्लाइंड मतलब एकदम अंधा अंधा प्यार भक्त है। करने वाला नहीं हाँ। है, भक्त। हाँ, भक्त भी नहीं था पता है वो, ओ भक्त, भक्त नहीं था। नहीं, नहीं, No, 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 अभी तो स्टार्ट ही किए। फेमस होना तो फिर भक्त आएगी। नहीं, अरे वो दोस्त नहीं होता है कि कुछ भी बिलीव करेगा, मैं पीछे एकदम हाँ, हाँ तेरा सपोर्ट एकदम करेगा। हाँ बोले लॉयल। भाई मैं शेर के ऊपर उठ के बकरी मार दिया, ऐसा कुछ बोले भी हाँ मान शेर के लेगा ऊपर, वाह वो। और हाँ, उसी टाइप का भाई था, अब बताए नहीं। नहीं नहीं बट ठीक है, बट और सीक्रेट गेम्स पर और कुछ है बात करने की? और वो नहीं है पारुल तो का बहुत नहीं, कुछ, इट्स लाइक अरे वो उसका वो एक उसका सरताज का दोस्त था जो कौन था जो कांस्टेबल, he was appreciated a lot। ओ हाँ 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 हाँ। काटेकर, काटेकर, हाँ। काटेकर। हाँ काटेकर many वो many many मरा भी many तो। characters, many actors came out of that series। मतलब कुबरा सेठ है, जतिन सरना है, इवन अपना सैफ अली खान को भी हम लोग को बहुत डिफरेंट एक रोल में देखा हम लोगों ने, मतलब वी डिडंट सी हिम प्लेइंग दिस रोल बिफोर। Saf out of his comfort zone, Also, we don't have to say this, Saf बहुत सारा अपना जोन से निकल के काम किया है। Having said this, Anurag Kashyap was already a name in the industry because वो background में बहुत सारा काम करता था। हाँ, He was a writer. He used to do a lot of other works also. So if Limelight में, I think gangs gave him that path and that kind of a culture where everybody is abusing, और वो realistic करने गया तो उस हिसाब से। But yeah, if you take all these three out, I think उसको शायद से इतना नहीं मिलता। I don't and know, also अभी a तो very important point is after sorry cut कर लूँ, like after a very massive outbreak of Anurag Kashyap and his talent and his movies, हम लोग अगर हम लोग को मूवीज में जाना है, अगर बनाना है कुछ, तो will it work again? like हम लोग अनुराग कश्यप जैसा मूवी वापस बना के हिट हो सकता है कि नहीं? बिकॉज नाउ डेज वी हैव सीन बहुत लोग इमिटेट करने का कोशिश कर रहे हैं, बट वैसा नहीं मिल रहा। I think Anurag Kashyap has given a path, like वो एक हाँ door वही। कि you explore this मैं वही fucking पूछ रहा हूँ कि should we like a being a aspiring director, actor, writer, जो भी है, like should they follow that pathway or like pave new pathways? देख एनीथिंग, एक तो चीज है ना कि वर्ल्ड में सेम टाइप का कंटेंट, इफ यू मतलब तू कंपेयर बहुत चीजों से कर सकता है। इवन कश्यप्स वर्क्स इज आल्सो बीइंग कंपेयर्ड विद गॉडफादर हो गया, टैलेंटिंग हो गया, बट इफ योर वर्क हैज योर ओन ओरिजिनलिटी, मतलब तू अपने विजन से अगर उसको डिफरेंटली करेगा, सो व्हाई नॉट, लाइक कोई कर ही सकता है। दैट इज मेरे को माय लगता है कि कश्यप के उससे पहले, मतलब गैंग्स उससे पहले
indie cinema did not explore that area of the audience जो कि पसंद आ सकता है, उन लोगों को पता नहीं था हाँ कि कि ये पसंद आ सकता है कि नहीं। तो हाँ कश्यप बोला कि चल ट्राई करते हैं और पसंद आ गया। आपको अब सबको पता चल गया कि ओ इसमें तो मेरा मार्केट है, इसमें तो मेरा पिक्चर हिट जाएगा ही ब्रो। तो सब लोग जा रहा है कि क्यों नहीं जाएगा। Of So course he can try. actually, I mean, Anurag Kashyap has made like created his own niche, हाँ, his own genre. नीश He तो has. किया और डोर एक पाथवे भी खोल दिया बहुत। हाँ, and he of has course. exposed the क्या बोलते हैं the audience to a particular kind of cinema and has let the other directors know कि देख भाई तू ये करेगा तो audience है, customer है, audience base है इसकी। बस और कुछ Amazingly, I think OTT platform is the perfect platform for Anurag Kashyap. For his movies, for You his are censor. movies, मतलब सेंसर ऑफिशियली है, हम लोग के सामने रीच भी आएगा। ज्यादा है, हाँ, रीच ज्यादा है, रीच भी ज्यादा। हम लोग के सामने आएगा ऑफिशियली। लाइक Hmm. मूवीज लाइक 5 एंड ऑल, वो तो रिलीज ही नहीं हुआ, बट मैं देखा, Hmm. बहुत अच्छा मूवी है। आई रिकमेंड यू बोथ आल्सो वॉच इट, बिकॉज बहुत। और अनुराग कश्यप का वन ऑफ द फर्स्ट मूवी, प्रोबेबली द फर्स्ट मूवी एज अ हाँ। डायरेक्टर है, हाँ, ठीक है। हाँ, केके मेनन है, इट्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ बैंड मेंबर्स, उनमें मर्डर किलिंग बहुत कुछ है, ठीक है। Okay. I won't spoil it and all, but also adapted from a real story, ठीक है, ट्रू स्टोरी से अडेप्टेड है। ड्रग्स एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, मतलब पूरा प्रॉपर अर्बन मिक्स एंड मैच है, But Hmm. raw Anurag, what Anurag वेरी रॉ, Kashyap है? वेरी रॉ, ठीक है। और Okay. एंड ऑल्सो केके मेनन तो है ही अपना जलवा दिखाने के लिए उस मूवी में। एनीवेज, तो वैसा मूवी आई थिंक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, Z5, हॉटस्टार, ये सब They'll buy it. like they should promote these movies and promote these directors. They do. I वो तो think है। OTT has given a lot of directors back. That this is ये where जो that हम लोग argument also comes ना, कि मतलब जिसको अनुराग कश्यप, मतलब they want to cater to a certain target audience. That target audience is not watching Netflix. of course. That is the real deal here. Of course. अभी तो जाके हम लोग जैसा लोग मिल गया उसको, अनुराग कश्यप को, कि हम लोग अब उसको फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं पड़ता। If OTT would have been there in like in 2000 में, अगर 2000 स्टार्टिंग में OTT नेटफ्लिक्स और ये सब स्टार्ट हो जाता और इंडिया में भी रहता, तो अनुराग कश्यप would have been somewhere else। मतलब वो अभी जो स्टारडम से है ना, उसका 10 times ज्यादा स्टारडम रहता है। Any God given। चलो, that's it for this episode, और I think हम लोग सब कुछ कवर कर चुका है अनुराग कश्यप के बारे में, if not everything, at least some of it, but हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर कुछ ज्यादा ही कर लिए कवर, but ठीक है, why not, because that is the obvious reasons. obvious reason है, हम लोग को गैंग्स पसंद है। Also डबकास्ट हम लोग मूविंग ऑफ फ्रॉम UEFA यूरो स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स, वहां से हट के हम लोग अभी मूवीज, टीवी शोज, पॉप कल्चर सब में एंटर कर लिए हैं, और दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। मतलब ये भी देख लेते हैं करके, तो ये भी काम आ जाए, ठीक है। ये भी किया। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। और व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट अप? ऑब्वियसली हम लोग इसी लाइन पे रह रहे हैं। we are talking about, rather हम लोग we'll be very honest about it. We'll talking about different cults, like Anurag Kashyap is a cult, or like we'll talk about Priyadarshan maybe, which is a cult again. Maybe David Dhawan, maybe Priyadarshan. Maybe हाँ, David Dhawan. ऐसा थोड़ा सा, maybe Salman Khan. Salute. Maybe सुभाष घाई, मणिरत्नम, कुछ भी हो सकता है। Please, and if you liked our episode, please share it to your friends, like, share and subscribe also. Please do, please, 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 कर दो।